Next question. The equation of progressive wave is y equal to 3 sine pi t by 3 minus x by 5 plus pi by 4, where x and y are in meter, time t is in second. Which of the following is correct? तो सबसे पहला काम करो, which of the following is correct? Option number, what is the standard equation of a wave? Y equal to a. Well, by the way, in 11th standard you have seen in chapter sound simple harmonic progressive wave का equation, a sine of omega t minus kx plus phi, where a is amplitude, correct? Where a is amplitude. So if you compare, a is equal to 3 minus 1. Why minus 1? x and y are in meter. मतलब अगर y मीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी मीटर में आएगा, तो 3 मीटर. मतलब सबसे पहला ऑप्शन नंबर भी नहीं आएगा. गुड. पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, यूनिट्स देखो एंड देन सॉल्व. देन यू हैव टू जस्ट कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 2 है, तो गिवन इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पाई को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना. एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इस इक्वेशन को 2 के साथ कंपेयर करो. एंड व्हेन यू कंपेयर यू सी k इज pi by 5. So by comparing k is pi by 5, but k is 2 pi by lambda. आपको पता होना चाहिए k is 2 pi by lambda. Cancel and cancel. तो lambda equal to 10 meter. Wavelength is 10 meter. Option number है D. Next question. The closed and open organ pipes have same length. So you have closed pipe and open pipe which have same length. When they are vibrating simultaneously in first overtone, so they produces 3 beats. The length of open pipe is made 1/3 and closed pipe is made 3 times the original. The number of beats now produced will be. तो पहले आपको बोला है ओपन पाइप का और क्लोज्ड पाइप का लेंथ है सेम, और आगे बोला है when they are vibrating simultaneously in first overtone they produce 3 beats. तो ओपन पाइप भी पहले ओवरटोन में था और क्लोज्ड पाइप भी पहले ओवरटोन में था. और आपको पता है बीट का फ्रीक्वेंसी होता है डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज. मतलब ओपन पाइप पहले ओवरटोन में था और क्लोज्ड पाइप भी पहले ओवरटोन में था. इसका मतलब या तो N1 ओपन माइनस N1 क्लोज्ड इक्वल टू 3 आएगा, या फिर N1 क्लोज्ड माइनस N1 ओपन इक्वल टू 3 आएगा. अब ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि पहले ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन किसका? ओपन पाइप का. फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक. ओपन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, मतलब सेकेंड 2 times of fundamental frequency, and fundamental frequency of open pipe is V by 2 times of L. मैं L open लिख सकता हूं, लेकिन उन्होंने बोला है same initially. Cancel and cancel, मतलब you have this as V by L. Similarly closed के लिए पहला is third harmonic, first overtone is third harmonic, तो third harmonic, and you know fundamental frequency is V upon 4L. तो डेफिनेटली ये 3/4 ऑफ V by L है, मतलब 0.75 ऑफ V by L, और ये 1 V by L. तो डेफिनेटली N1 open is greater than N1 closed, right? So this is what you will get. अब ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें. If you substitute this here, you get V by L minus 3V by 4L equal to 3. मैंने सिर्फ फर्स्ट ओवरटोन ओपन और क्लोज पाइप का सब्स्टिट्यूट किया है. दिस इज नथिंग बट 1/4. एक में से 3/4 गया तो 1/4, मतलब ये आ जाएगा आपके पास V by 4L इक्वल टू 3.
मतलब V by L equal to 12. So this will give you V by L equal to 12. अब आगे ऐसा बोला है, the length of open pipe is made 1/3. मतलब अभी न्यू केस में length of open pipe is made 1/3 of initial, and length of closed pipe is 3 times of initial, 3L, right? The number of beats, how many number of beats? तो अब यहाँ पे beats कौन से ओवरटोन में, कुछ नहीं बताया. नंबर ऑफ बीट्स heard in first overtone, second overtone, third overtone we don't know. तो ऐसे केसेस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है. You don't know anything, take fundamental. तो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ open pipe in this case, second case, what is this? V by 2LO. So V by 2LO, LO is L by 3, ये ऊपर जाएगा. So this is 3 by 2 V by L, and closed के लिए will be V by 4 LC, but LC is 3L, तो ये आ जाएगा 4 into 3 12. अब 12L. तो अब यहाँ पे भी as you can see 3 by 2 is 1.5, this is 1 by 12. यहाँ पे भी ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आप n ओपन माइनस n क्लोज्ड करोगे, और ये दोनों आपको पता है. n ओपन कितना, V by 2 V by L, और ये कितना V by 12L, but V by L is 12 1 and 6 18, 1 by 12, and V by L is also 12. Cancel 18 minus 1 17. So 17, option number C. Next question. Two uniform wires of the same material, मतलब density is same, okay, volume density of course, are vibrating under the same tension भी same है. If the first overtone of the first wire is equal to second overtone of the second wire, and radius of first wire is twice the radius of second wire, then the ratio of length of first wire to that of second wire is. तो आपको रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ सेकंड वायर, मतलब LA by L भी पूछा है आपको. मैं पहली वायर को A बोल रहा हूँ, दूसरे वायर को B बोलता हूँ. बट इन एनी केस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट बाय डिराइविंग रिलेशंस बिटवीन नोन पैरामीटर्स एंड अननोन पैरामीटर्स. व्हाट इज अननोन, लेंथ, क्योंकि रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है. व्हाट इज नोन, सेम मटेरियल सेम टेंशन, ओके. देन व्हाट एल्स, रेडियस बोला है कहीं, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज दैट ऑफ ट्वाइस of second wire. So you know fundamental frequency N is equal to 1 upon 2L under root of tension by mass per unit length. हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमें L का पूछा है रेशियो, T सेम बोला है, बट मास पर यूनिट लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं है. इंस्टेड दे आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस का इंफॉर्मेशन है, तो रेडियस लाना पड़ेगा यहाँ पे. गुड. तो रेडियस कैसे लाएंगे, 1 by 2L रूट ऑफ T, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ ऊपर गया, बट मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो 1 upon 2L रूट ऑफ TL अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. बट वॉल्यूम ऑफ वायर बीइंग अ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ होता है कैंसल, और एरिया इज पाई आर स्क्वायर. 1 by 2L रूट ऑफ T पाई आर स्क्वायर रो. राइट. नाउ टेंशन सेम है, मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी सेम है, पाई कांस्टेंट है, और आर का स्क्वायर है और रूट के अंदर है तो बाहर आएगा, और 2 भी कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली n इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon L रूट ऑफ आर स्क्वायर. लेकिन रूट ऑफ आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 upon LR.
राइट। तो हमें पूछा है लेंथ, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/n/r, करेक्ट। अब गिवन क्या है, गिवन में बोला है इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ सेकेंड वायर, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, ये ओवरटोन नहीं है। This is overtone. We started with fundamental, so that is nothing but fundamental and not overtone. तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा संभल के चलना, नहीं तो गए मार्क्स शाम से। अब ऑफ कोर्स पहले वायर को मैं ए बोल रहा हूं, ए का फर्स्ट ओवरटोन बी के सेकंड ओवरटोन कितना है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर मतलब ए वायर इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ सेकंड वायर मतलब बी वायर। फर्स्ट ओवरटोन, दोनों तो वायर ही है, वायर में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो पहला ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक और यहाँ पे सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल होता है, तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिल गया, तो आपको NB/NA मिल गया, कितना 2/3। वेरी गुड। और ऊपर से आपको फर्स्ट वायर का रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड, बोला है ना ट्वाइस, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द सेकंड, तो RB/RA मिल गया, कितना मिल गया 1/2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू विल हैव इज, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेंथ ऑफ A अपॉन लेंथ ऑफ B और लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ B रेडियस ऑफ B अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A रेडियस ऑफ A। नाउ यू विल अंडरस्टैंड मैंने NB/NA क्यों लिखा, NB/NA इज 2/3 और RB एंड दिस इज कैंसिल मतलब कितना 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर A, डन। Next question. In sonometer experiment, the string of length L under tension vibrates in second overtone between two bridges. Second overtone मतलब third harmonic. पहला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक लूप होता है, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक में 2 होते हैं, सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप होता है, याद रखना। आगे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एट, मतलब आपको बता दिया कि सोनोमीटर वायर है, उसमें स्ट्रिंग का लेंथ L है, इट इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड ओवरटोन, मतलब 3 लूप बनेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, मतलब दे आर आस्किंग यू द लोकेशंस ऑफ एंटीनोड्स, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज एंटीनोड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to remember sonometer box and we will not be really using this, सिर्फ पता होने के लिए कि क्या होता है कि सोनोमीटर बॉक्स इज समथिंग लाइक दिस, और ये सोनोमीटर बॉक्स में नीचे यहाँ पे देयर आर 2 होल्स फॉर साउंड टू गो इनसाइड, एनीवे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं उसको। देन व्हाट यू हैव इज, आपके पास यहाँ पे 2 नाइफ एजेस होते हैं, सो यू हैव 2 नाइफ एजेस समथिंग लाइक दिस, तो 2 नाइफ एजेस होते हैं मोर और लेस लाइक दिस। देन अ वायर is supported at one end from a rigid support, तो यहाँ पे एक rigid support होता है and you put a wire here on this rigid support, then you run a wire over 2 knife edges, so you put a wire like this, good, then you have a pulley over here and this pulley, the pulley is supposed to be massless and frictionless, इस pulley के बाद यहाँ से ये wire आएगा और देन नीचे यू हैव अ स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट, ये जस्ट टू रिवाइज, ओके। तो स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेंथ की जब बात होगी, लेंथ L ऑफ द वायर, दिस वाइब्रेटिंग लेंथ, क्योंकि जब हम लेंथ बोलते हैं तो वाइब्रेटिंग लेंथ की बात करते हैं, तो वाइब्रेटिंग लेंथ इज द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन 2 नाइफ एजेस। बी वेरी क्लियर, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि टोटल 10 मीटर है,
or the distance between two knife edges is 8 meter, so vibrating length is 8 meter and not 10 meter. Okay, good. अगर आया तो अब ये डायग्राम आपके काम की नहीं है, सिंपल, ये सिर्फ पता होने के लिए था। काम का क्या है? काम का है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यू शुड रिमेंबर कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में मतलब फर्स्ट हार्मोनिक में कितने लूप्स, कितने लूप, कितने? अरे एक। ओके गुड, एक लूप। और आपको पता है यहां से ये 0 पॉइंट होता है, यहां से यहां तक, इसको आप बोलते हो टोटल लेंथ एल। पहले हार्मोनिक में यू हैव वन लूप मतलब 2 नोड्स और एक एंटी नोड। पहला नोड बना 0 पे, दूसरा बना एल पे। और आपको ये पता है कि 2 नोड के बिल्कुल सेंटर में होता है एंटी नोड, मतलब 0 और एल के सेंटर में, मतलब L/2 पे। You don't need to know, I mean, you don't have to answer this in the question. आपको सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक की बात की, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। 2 नोड्स के बिल्कुल सेंटर में, मतलब आपने क्या किया, 0 + L/2, 0 + L/2। गुड। अब अगला जो आपके पास मोड होगा, अगले मोड में मतलब फर्स्ट ओवरटोन में यू हैव 2 लूप्स और 2 लूप्स, मतलब कितने नोड्स? एक 0 पे, दूसरा L/2 पे और तीसरा L पे, बिल्कुल सेंटर में। और एंटी नोड्स कहां गए? एंटी नोड एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये था 0, ये था L/2 और ये था L, मतलब 2 एंटी नोड के बिल्कुल सेंटर में, मतलब 0 + L/2/2, L/4। अब एक चीज पता होनी चाहिए, जितना डिस्टेंस 2 नोड्स में होता है उतना ही डिस्टेंस 2 एंटी नोड में होता है। 2 नोड्स में डिस्टेंस कितना है? L/2। फिर L/4 + L/2 करूंगा, 3L/4, तो ये मिल जाएगा सेकेंड एंटी नोड का लोकेशन, 3L/4। अब कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में सीधा ये था। तो यहां पे सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक 3 लूप्स, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा समझ लेना आप, इमेजिनेशन। ओके, एनीवेज, राइट। तो आई नो फिगर इज नॉट अप टू द स्केल, बट इट्स ओके, राइट। 0 पे पहला, L/3 पे दूसरा। क्यों? क्योंकि ये देखो, दैट इज वाई कनेक्ट। एक लूप था तो पूरा का पूरा सेगमेंट सिंगल वायर था, 2 लूप था तो वायर के 2 सेगमेंट्स हुए इक्वल लेंथ के, L/2 और L/2। 3 लूप तो 3 सेगमेंट्स हुए, L/3 एंड L/3। 4 होंगे तो L/4 के 4 सेगमेंट होंगे, राइट। तो 0 से पहला सेगमेंट कहां खत्म होगा? फिर L/3 पे, L/3 और अगला L/3 डिस्टेंस पे, लेकिन 0 से 2L/3 पे। L/3 दूसरा भी L/3, लेकिन 0 से L/3 + L/3, मतलब 2L/3, और ये आ गया L। अब बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। वेर इज एंटी नोड? फर्स्ट L/6, 0 + L/3/2, मतलब L/6। मैंने बता दिया था L/6 + L/3, क्योंकि 2 नोड्स का डिस्टेंस, मतलब 2 एंटी नोड्स, L/6 + L/3, L/6 + L/3, मतलब L/6 + 2L/6 × 2, मतलब 3L/6, मतलब L/2, मतलब दूसरा बना राइट एट द सेंटर ऑफ द वायर, राइट। और तीसरा बनेगा L/2 + L/6, L/2 + L/3, नॉट 6, सॉरी, L/2 से ये डिस्टेंस है वापस से L/3, तो L/2 + L/3, 5L/6, राइट, करेक्ट। L/6, L/2, 5L/6।
Next question. The fundamental frequency of an air column in a pipe closed at one end is 100 hertz. तो आपको fundamental frequency of closed pipe दिया है 100 hertz. If the same pipe is open at both the ends, same pipe मतलब length is same. The frequency is produced in hertz r. अगर आपको बेसिक्स याद है तो ओरल है, नहीं याद है तो कर लेंगे. ओपन क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 100 हर्ट्ज, बट इट इज नथिंग बट v by 4l. दिस इज इक्वल टू 100. डू यू रिमेंबर कि ओपन पाइप का होता है v by 2l. तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये 4 को 2 into 2 लिखा इक्वल टू 100. फिर ये जो v by 2l है ये बन जाएगा 200. ये है नथिंग बट ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200, और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स हैज ऑल द हार्मोनिक्स. सो अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, an open pipe has what it has is first frequency, then second मतलब first harmonic, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, so on so forth. तो ये है 200, ये है 400, ये है 600, and then you have 800, 200, 400, 600, 800, so on so forth. Next question. A progressive wave is represented by y equal to 12 sine of 5t minus 4x. On this wave, of course in centimeter, on this wave how far away are the 2 points having phase difference of 90 degree. तो दो पॉइंट में फेज डिफरेंस 90 दिया है, उसका पाथ डिफरेंस पूछा है. हाउ फार मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस. तो सबसे पहले यू नीड टू नो y equal to 12 sine of 5t minus 4x सेंटीमीटर, ये गिवन इक्वेशन है. और स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y equal to a sine of omega t minus kx. मतलब by comparing you get k equal to 4 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा है. नहीं, CGS units. Okay, anyways, CGS units. Now you should know, what you should know is path difference is equal to what is k? 2 pi by lambda. तो if you remember, मैंने आपको एक बार बताया था phase difference phi is k times of path difference. I told you many times when we were studying interference. मैंने ये भी बताया था कि ये सही क्यों है. मैंने बताया था ये होता है 2 pi by lambda, और ये डेल्टा मीटर में और ये भी मीटर में. तो मीटर मीटर कैंसिल होना चाहिए तो एंगल मिलना चाहिए. तो दैट इज व्हाई फेज डिफरेंस इज k टाइम्स ऑफ path difference. Our interest is in finding out delta. तो delta is phase difference by k. phase difference कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन? pi by 2, और k कितना है? 4. तो pi by 8 सेंटीमीटर. pi by 8, ऑप्शन नंबर C. Next question. The equation of sound wave is y equal to 0.0015 sine of 62.4x. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है. I will write 316t plus 62.4x. एक ही बात है, I know, but I'll compare with y equal to a sine of omega t plus kx. आपको क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ. तो कंपेयर करोगे तो k क्या मिल जाएगा? Comparing k is equal to 62.4, but k is what? 2 pi by lambda. 62.4. So lambda is what? Lambda is 2 pi by 62.4. 2 into pi. 2 into 3.14 is 6.28 upon 62.4. Roughly 1 and 10. Approximate. 6.28 upon 62.4. मतलब 6.28 upon 62.8, roughly 1 by 10. 1 by 10 is 0.1 unit. क्योंकि 1 by 10 is 0.1. 0.1 unit, option number B. So that's it for today.